the chief guest for the 99th Defence Estates Day celebrations. The Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has just arrived in the premises. The Honorable Raksha Mantri ji will be joining us in a bit. It is again requested to please put all your mobile phones on silent mode or airplane mode. The Honorable Raksha Mantri ji is interacting with the students of Cantonment Board schools. The students of Cantonment Board School recently represented India in an international robotics event at Estonia, and they brought laurels for their region, for the country, as they were adjudged best in the category of in the beginners category, and overall they secured the 13th position. You can see the artifacts made by the students of Cantonment Board schools. They have been made from all recyclable materials. माननीय रक्षा मंत्री जी, अभी कैंटोनमेंट बोर्ड दिल्ली द्वारा कृपा स्कूल के बनाए गए बच्चों द्वारा आर्टिफैक्ट्स और सेलेबल आइटम्स जैसे कि वैक्स कैंडल्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, क्रोशेटेड फ्लावर्स एवं की चेन्स की प्रस्तुति देख रहे हैं। इस स्कूल में 170 बच्चे पढ़ते हैं व ये सारे आर्टिफैक्ट्स 10 से 18 साल की उम्र के बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। Master Tanshu is a special student from Cantonment Board School Ambala, and he recently won medals for India in the International Special Olympics. The Cantonment boards are also working towards the target set out by Honorable Raksha Mantri ji to achieve carbon neutrality by 2035. So a working model of the plan, the rollout plan, is being showcased by Cantonment Board Bareilly. So aligned with the Honorable Prime Minister's vision of Swachhta Hi Seva, the department has undertaken comprehensive cleanliness drives, scientific solid waste management practices, elimination of legacy waste, and extensive public participation initiatives, transforming cantonments into models of cleanliness and hygiene. An innovative waste bin which segregates the dry and wet waste with the use of sensors. This year, the Defence Estates Department facilitated 50+ infrastructure projects by facilitating the transfer of defence lands for these projects. The cumulative cost for these projects is more than 1,000 crores. And within the year 2025,
an area of 3,000 acres of land has been acquired. A working model prepared by the students of Cantonment Board School, Lucknow, showcasing all the development works initiated by the Honorable Minister Shri Rajnath Singh for Lucknow. It's a painting, the portrait made by the students of Cantonment Board Schools being presented to the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. And this is a 3D model prepared through with the use of 3D printing technology by the students of Cantonment Board Schools. The Honorable Minister will be here with us. So, ladies and gentlemen, we warmly welcome the chief guest for 99 Defence Estates Day celebration, the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. इस अवसर पर मैं सभागार में पधारे माननीय मुख्य अतिथि जी व अन्य गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं और साथ ही मैं महानिदेशक रक्षा संपदा महोदया से सादर अनुरोध करती हूं कि वे विशिष्ट अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करें एवं दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। हम सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से धन्यवाद करते हैं व अनुरोध करते हैं कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर आज के दिवस की गरिमा बढ़ाएं। May the flame of knowledge and compassion illuminate our lives. So, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. I, Varun Kalia, the Defence Estates Officer, Delhi Circle. और मैं रिधिपाल छावनी परिषद सुबाथू और जतौर की CEO। We warmly welcome you all to the Defence Estates Day celebrations. Today, we gather to acknowledge the invaluable contribution, unwavering dedication, and visionary leadership of the Defence Estates Organization in managing defence lands and developing cantonments as modern, smart, and sustainable townships. रक्षा संपदा विभाग की गौरवशाली शुरुआत मूल रूप से 16 दिसंबर 1926 को मिलिट्री एंड कैंटोनमेंट सर्विस के नाम से हुई थी, जिसे बाद में डिफेंस लैंड्स एंड कैंटोनमेंट सर्विस और फिर 1985 में इंडियन डिफेंस एस्टेट्स सर्विस के रूप में विकसित किया गया। यह सेवा देश भर में लगभग 17 लाख एकड़ से अधिक रक्षा भूमि और 61 छावनी बोर्डों के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाती है।
आज हम रक्षा संपदा दिवस पर इस विभाग की समर्पित सेवा और उत्कृष्ट कार्यों को याद करते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। आज का ये अवसर रक्षा संपदा विभाग की उपलब्धियों, सुधारात्मक पहलों तथा राष्ट्र निर्माण में उसके निरंतर योगदान को साझा करने का है। इन्हीं महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालने हेतु अब मैं महानिदेशक महोदया रक्षा संपदा श्रीमती शोभा गुप्ता को स्वागत भाषण देने के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय CDS महोदय, आदरणीय रक्षा सचिव महोदय, आदरणीय चेयरमैन DRDO महोदय, FADS महोदय, मंत्रालय के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों और मेरे सभी साथियों, आज इस रक्षा संपदा दिवस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। यह दिन हमारे लिए केवल एक औपचारिक अवसर नहीं है, ये हमारी उस निरंतर यात्रा का प्रतीक है जिसमें हम राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा, छावनी क्षेत्रों की सेवा और रक्षा मंत्रालय के मूल्यों यानी ईमानदारी, निष्ठा और उत्कृष्टता को जीवंत रखते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपका यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आपका नेतृत्व, आपकी दूरदृष्टि और आपका निरंतर सहयोग हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सिस्टम को आधुनिक बनाएं, शासन को मजबूत करें और अपने काम को देश की आकांक्षाओं के अनुरूप ढालें। रक्षा संपदा संगठन की ओर से मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा आप सबको विदित है, देश भर में हमारे 61 कैंट बोर्ड्स लाखों नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। बोर्ड मजबूत लोकल बॉडीज़ के रूप में काम कर रहे हैं तथा इनको पारदर्शी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे लगभग 181 स्कूल्स हैं जिनमें करीब 60,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित 28 स्पेशल सेंटर्स भी हैं। इसके अलावा 39 हॉस्पिटल्स, 36 डिस्पेंसरीज और 63 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी चलाए जा रहे हैं। पिछला वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमने अपनी संस्थाओं में कई सुधार और नवाचार किए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल ब्रिक्स सम्मेलन में कहा था कि फॉर इंडिया क्लाइमेट जस्टिस इज़ नो ऑल्टरनेटिव, इट इज़ अ मॉरल ऑब्लिगेशन। हमारे देश ने 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशंस प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है। इसके साथ ही पंचामृत कमिटमेंट्स में 2030 तक 500 गीगावाट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाना और जीडीपी की कार्बन इंटेंसिटी को 45% कम करने का लक्ष्य भी शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन तथा माननीय रक्षा मंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुरूप हम कंटोनमेंट क्षेत्रों में भी की रक्षा भूमि पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स, साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लार्ज स्केल अर्बन ग्रीनिंग इनिशिएटिव्स और ग्रीन मोबिलिटी जैसी आधुनिक पहलों में तेज़ी ला रहे हैं ताकि इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस वर्ष आयोजित मंथन में छावनियों को 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य दिया था। इस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बरेली कंटोनमेंट बोर्ड ने इस दिशा में अपनी बिल्डिंग्स, स्ट्रीट लाइट्स और वाटर सप्लाई सिस्टम का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से एनर्जी ऑडिट कराया, जिससे उन्हें ऊर्जा बचत और प्रदूषण कम करने के लिए क्लीन एनर्जी और ग्रीन मोबिलिटी के प्रयोग से कार्बन न्यूट्रलिटी करने का रास्ता दिखा है। यह प्रयोग बाकी परिषदों में भी किया जाएगा ताकि माननीय रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके। जल संरक्षण हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। पिछले लगभग एक साल में
55 छावनी बोर्डों में बोरवेल उपयोग पर प्रभावी नियम बनाए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों और झरनों को पुनर्जीवित करने और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के हमारे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। सर, मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि डिफेंस एस्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन को महामहिम राष्ट्रपति महोदया की अध्यक्षता में आयोजित नेशनल वाटर अवार्ड्स 2025 समारोह में जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि हमारे सामूहिक प्रयास का वैलिडेशन है। ऊर्जा बचत और पर्यावरण सुधार की दिशा में भी सभी छावनी बोर्डों ने कार्य किया है। सभी बोर्डों ने LED स्ट्रीट लाइट लगाई हैं। प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर योजना के तहत सोलार पैनल्स लगाने का काम भी तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा सफाई क्षेत्र में सभी कंटोनमेंट बोर्ड्स सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल 20 कैंट्स में STP और अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम उपलब्ध है और बचे हुए कैंट्स में भी इनको बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मुझे यह बताते हुए भी गर्व है कि इस साल स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के ओपन कैटेगरी की 824 अर्बन लोकल बॉडीज़ में सिकंदराबाद कैंट ने 11th रैंक प्राप्त किया, जो कि उल्लेखनीय है। इसी क्रम में देवलाली और महू कैंट्स ने भी ओपन कैटेगरी में 21st और 23rd रैंक प्राप्त किया है। कैंटोनमेंट बोर्ड बैरकपुर और दानापुर में मियावाकी मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन से बहुत छोटे क्षेत्र में वृक्षों का सघन प्लांटेशन किया गया है। ऐसे घने वृक्षारोपण से उस एरिया में कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करना आसान हो जाता है। रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश में अंडर यूटिलाइज्ड तथा रिक्त रक्षा भूमि की निहित क्षमता को अनलॉक कर राष्ट्रीय हित में इस्तेमाल करने की योजना बनी है। इसके तहत सोलार प्लांट्स, बायोगैस प्लांट्स आदि द्वारा रक्षा भूमि को सुरक्षित रखते हुए कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को भी प्राप्त करने का प्रयास है। बायोगैस प्लांट धान उगाने वाले क्षेत्रों में उपलब्ध क्रॉप रेसिड्यू को ईंधन के रूप में उपयोग करेगा, जिससे पराली जलाने से होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या भी कम होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस साल पेरिस में आयोजित AI एक्शन समिट में कहा था कि AI इज़ राइटिंग द कोड फॉर ह्यूमैनिटी इन दिस सेंचुरी। हमने भी प्रशासन की एफिशिएंसी बढ़ाने और जन सुविधा को सुलभ करने के लिए AI का पिछले कई सालों से निरंतर उपयोग किया है। निडम में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सलेंस ने DMAP प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, जो हर डिफेंस लैंड पार्सल को डिजिटली मैप करता है और एनक्रोचमेंट लेयर्स व बाउंड्री डिटेल्स की मदद से रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है। चेंज डिटेक्शन टूल से सैटेलाइट इमेजरी और मशीन लर्निंग की मदद से एनक्रोचमेंट तथा लैंड यूज चेंज डिटेक्ट हो रहे हैं। इस टूल से सरफेस कवर से के नेचर और वेकेंट लैंड्स की उपलब्धता का भी पता लगता है, जो कि भू अर्जन के प्रपोजल्स को एनालाइज करने में बहुत उपयोगी पाया गया है। लैंड एक्विजिशन मामलों की निगरानी के लिए भी एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जो रक्षा मंत्रालय के सैंक्शन से लेकर एक्विजिशन पूर्ण होने तक की सभी कार्यवाहियों को रिकॉर्ड रखता है। यह पहल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में अहम कदम है। ई-छावनी पोर्टल के ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम मॉड्यूल को 3 नई फंक्शनैलिटीज़ जोड़कर अपग्रेड किया गया है, जिससे यह मॉड्यूल और बेहतर और सिटीजन फ्रेंडली हो गया है। खड़की एवं रानीखेत कंटोनमेंट बोर्ड्स ने CSR फंडिंग से रोबोटिक्स लैब बनवाया है, जिससे सीमित संसाधन वाले परिवार से आने वाले 1500 से भी अधिक बच्चों को आधुनिक AI शिक्षा मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय रक्षा मंत्री जी की गरिमाई उपस्थिति में मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष की प्रथम
3 क्वार्टर्स में ही रक्षा संपदा अधिकारियों और छावनी परिषदों ने 200 एकड़ से भी अधिक रक्षा भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया। इस भूमि की अनुमानित कीमत 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इस दिशा में हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ, साथ ही सेना और मंत्रालय के वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनका मार्गदर्शन तथा उत्साहवर्धन हमारी ऊर्जा का सतत स्रोत रहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी के समक्ष मैं रक्षा संपदा संगठन की ओर से संकल्प लेती हूँ कि हम अपने काम में विनम्रता, पारदर्शिता और जन केंद्रित सोच को और मजबूत करेंगे। आप सभी को रक्षा संपदा दिवस 2025 और विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। Thank you, ma'am, for the inspiring words and for highlighting the guiding philosophy that drives the Defense Estates Department. Thank you, ma'am. देवियों और सज्जनों, अब आपके समक्ष रक्षा संपदा विभाग द्वारा विगत वर्षों में किए गए उत्कृष्ट, नवाचारी एवं जनहितकारी कार्यों की संक्षिप्त प्रस्तुति प्रदर्शित की जाएगी, जो विभाग की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और दूरदर्शी सोच को दर्शाती है। देश भर के सभी छावनी परिषद व डिफेंस स्टेट्स ऑफिसर्स आज केवल प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं, बल्कि नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और आधुनिक शहरी निकायों के रूप में उभर रहे हैं। नागरिक प्रशासन, स्वच्छता, सड़क, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण व भूमि प्रबंधन, इन सभी क्षेत्रों में रक्षा संपदा के सभी ऑफिसर्स निरंतर सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। This audiovisual journey will help us understand the breadth of responsibilities and the impact of department's work in the field of land management and municipal administration. Can we please have the audiovisual clip now? देश भर में 61 छावनी परिषद लाखों नागरिकों को रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सेवाएं जैसे नागरिक प्रशासन, साफ सफाई, सड़कें, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मुहैया कराते हैं। इन परिषदों को पारदर्शी, संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बेहतर पर्यावरण और स्वास्थ्य की दिशा में पॉलीथीन कचरा बैंक की स्थापना सभी छावनियों में की गई है। जम्मू एवं देहू रोड छावनी में पंचकर्मा केंद्र, बरेली, जबलपुर, कानपुर और लखनऊ छावनियों में डायलिसिस यूनिट, दिल्ली छावनी में फाइब्रोस्कैन यूनिट और ट्री एम्बुलेंस, रानीखेत एवं खड़की छावनी में एआई और रोबोटिक लैब की शुरुआत की गई है। जम्मू छावनी द्वारा छावनी दिवस के माध्यम से प्रशासन को नागरिकों के करीब ले जाया गया है। इस साल के स्वच्छ सर्वेक्षण में सिकंदराबाद, देवलाली और मऊ छावनियों ने शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में देश में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में छावनी परिषद वर्षा का जल बचाने, तालाबों को पुनर्जीवित करने और भूजल रिचार्ज के कार्यों में प्रयासरत है। इन प्रयासों के कारण रक्षा संपदा विभाग को जल संरक्षण के क्षेत्र में 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय जन भागीदारी में सर्वश्रेष्ठ भागीदार मंत्रालयों या विभागों की श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी छावनी परिषदों में एलईडी स्ट्रीट लाइटें लग चुकी हैं। प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने का काम तेजी से चल रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाय लॉज अब सभी छावनी परिषदों में लागू हो चुके हैं और आधुनिक सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी शुरू किए जा चुके हैं। ये कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि है। रक्षा संपदा के ई छावनी पोर्टल से अब तक करीब 13 लाख नागरिक जुड़ चुके हैं। करीब 10,000 कम्युनिटी हॉल बुकिंग, 36,000 ट्रेड लाइसेंस
GIS तकनीक के द्वारा करीब 5,600 पेयजल और 500 सीवर कनेक्शन जैसी सुविधाएं ई छावनी पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को दी जा चुकी हैं। सुविद्या पोर्टल द्वारा छावनी परिषद के स्कूलों की कार्य प्रणाली जैसे प्रवेश, फीस भुगतान, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ऑनलाइन असाइनमेंट, नोटिफिकेशन आदि सुविधाओं को डिजिटाइज किया गया है। छावनी परिषदों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे दिल्ली छावनी का स्मार्ट ऐप जो सफाई व्यवस्था की रियल टाइम निगरानी करता है। बरेली छावनी परिषद द्वारा छावनी को कार्बन न्यूट्रल बनाने एवं क्लीन एनर्जी और ग्रीन मोबिलिटी को कार्यान्वित करने की दिशा में पहल की गई है। एनर्जी ऑडिट के बाद बरेली छावनी की गाड़ियों को CNG या EV में बदलने तथा चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। ये सफल प्रयोग बाकी छावनी परिषदों में भी लागू किए जाएंगे। भूमि प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए रक्षा संपदा विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लैंड यूज एनालिसिस टूल, 3D विजुअलाइजेशन और चेंज डिटेक्शन जैसे मॉड्यूल बनाए गए हैं। इसी क्रम में रक्षा संपदा विभाग द्वारा RTRM सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है, जिसके भूमि रक्षा मॉड्यूल की मदद से अतिक्रमणों के डेटा को रियल टाइम में मॉनिटर किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप रक्षा संपदा कार्यालयों और छावनी परिषदों ने इस साल लगभग 220 एकड़ रक्षा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन के अनुसार नए भारत की नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा संपदा विभाग छावनी परिषदों और रक्षा संपदा कार्यालयों को और अधिक सक्षम, सशक्त एवं आधुनिक बनाने की ओर अग्रसर है। जय हिंद। So, ladies and gentlemen, as you have just seen that the Defence Estates Organization is much more than a land management authority. It is a custodian of heritage, a promoter of sustainable infrastructure, and a facilitator of inclusive community growth. And we all take pride in it. अब हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री द्वारा विभाग की नई पहलों का उद्घाटन किया जाएगा। ये इनिशिएटिव्स नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने तथा टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिए गए हैं। मैं इस सभा को अवगत कराना चाहता हूं कि विकसित भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रोड मैप पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री द्वारा सितंबर 2025 में किया गया था। इस अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री ने रक्षा संपदा विभाग के लिए अपनी विजन को साझा करते हुए यह रेखांकित किया कि प्रत्येक छावनी निवासी को आधुनिक नागरिक सुविधाएं एवं उच्च गुणवत्ता वाला जीवन स्तर प्राप्त होना चाहिए। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि रक्षा संपदा विभाग द्वारा दिल्ली कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल के माध्यम से देश भर के सभी छावनी परिषदों तक टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया गया है, जिससे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अब रिमोट कंसल्टेंसी के माध्यम से 61 छावनी वासियों के लिए सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित कर सकेंगे। आइए अब हम आज के दूसरे इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं। रक्षा संपदा संगठन देश भर में विस्तृत रक्षा भूमि नेटवर्क की कुशल, पारदर्शी और प्रभावी देखरेख के लिए जिम्मेदार है। इसी के अंतर्गत, जैसा कि महानिदेशक महोदया ने अपने स्वागत भाषण में हमें अवगत किया, रक्षा संपदा महानिदेशालय एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म डिफेंस स्टेट्स मैपिंग पोर्टल DMAP का प्रयोग करता है, जिसे आज के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। DMAP यानी कि डिफेंस स्टेट्स मैपिंग पोर्टल उन्नत GIS तकनीक को रक्षा भूमि रिकॉर्ड के साथ एकीकृत कर हर भूमि खंड को एक संयुक्त डिजिटल मानचित्र पर लाता है। The interactive interface of this platform enables the Defense Estates Department to take transparent, planned and data-driven decisions on land management. PM गति शक्ति पोर्टल के साथ DMAP का एकीकरण रक्षा मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित, समन्वित और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को बल देगा।
The third initiative is the seamless integration of accrual-based accounting system with eChavni. I would like to share with the August gathering that all cantonment boards have successfully transitioned from the cash-based accounting system to double entry-based accrual system, which provides modern and reliable financial management. In addition to it, all cantonment boards have successfully implemented the eChavni project, providing 100% civic services online to over 20 lakh cantonment residents. Today, as a part of the broader vision of digital governance and ease of living set out by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the two initiatives are being integrated. May I request the Honorable Raksha Mantri to inaugurate the initiatives and dedicate them to the residents of cantonments. The first being Chhavni Parishad में telemedicine का विस्तार. अब माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे पीएम गति शक्ति पोर्टल के साथ डीमैट के एकीकरण का भी शुभारंभ करें. The third initiative to be inaugurated today is the integration of eChavni with accrual-based accounting system. धन्यवाद महोदय. जल ही जीवन है और जल संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व. रक्षा संपदा विभाग एवं छावनी परिषदों द्वारा किए गए प्रयास इस दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणा स्रोत बने हैं. मुझे यह बताते हुए उल्लास की अनुभूति हो रही है कि रक्षा संपदा विभाग को हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए जल संचय जन भागीदारी अवार्ड श्रेष्ठ साझेदार मंत्रालय व विभाग श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इन सराहनीय कदमों एवं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए रक्षा संपदा विभाग द्वारा जल संरक्षण पहल पर आधारित एक पुस्तिका तैयार की गई है, जिसमें रक्षा संपदा विभाग तथा हमारे कैंटोनमेंट्स द्वारा जल संरक्षण की दिशा में किए गए विविध कार्यों और प्रयासों को उजागर किया गया है. अब मैं इस अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री जी एवं मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे इस पुस्तिका का विमोचन करें. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, as I had just shared that in September 2025, the Honorable Raksha Mantri inaugurated the National Conference on Strategic Roadmap for Viksit Bharat. The two-day conference held deliberations on the evolving role of Defence Estates Department in reimagining defence land management and strengthening governance as well as sustainability frameworks in cantonment boards. The Honorable Raksha Mantri had also set a very clear vision for the Defence Estates Department to make cantonments carbon neutral by 2035. Sir, the outcomes of the deliberations have been consolidated into a booklet, which will now serve as a guiding framework for defining the role and contribution of Defence Estates Department towards Viksit Bharat 2047. I request the Honorable Raksha Mantri to release the booklet, Strategic Roadmap to Viksit Bharat. Thank you, sir. सुशासन वही है जो नागरिक के जीवन को सरल, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाए. देश भर में रक्षा संपदा विभाग के विभिन्न ऑफिसेज द्वारा लिए जाने वाले ऐसे ही कुछ प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए हर वर्ष की भांति आज भी रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा. यह पुरस्कार वर्ष 2013 में शुरू किए गए थे और तब से प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं. पुरस्कार वितरण के दौरान कार्यालयों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी. यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि इन पुरस्कारों का चुनाव एक निष्पक्ष कमेटी के द्वारा किया गया है, जिस कमेटी में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी की सहभागिता थी, जैसे कि
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इत्यादि। माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे विजेताओं को पुरस्कृत करने हेतु मंच पर आगे आएँ। मंचासीन अतिथियों से भी अनुरोध है कि वे भी पुरस्कार वितरण में माननीय रक्षा मंत्री जी का सहयोग करें। The first award for this afternoon is in the stream of Swachh Chhavni, Swasth Chhavni. There are 3 categories in this award, category A, B, and C. The award in category A goes to Devlali Cantonment Board, Maharashtra. Can we please have a short film on the brilliant efforts by Cantonment Board, Devlali? महाराष्ट्र के नाशिक जिले में स्थित छावनी परिषद देवलाली स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में अग्रणी है, जहां छावनी परिषद देवलाली के आम जनता की सहूलियत के लिए सभी सार्वजनिक उद्यानों में सैर सपाटे, व्यायाम हेतु ग्रीन जिम एवं योग पार्क का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ सड़कों और महत्वपूर्ण स्थलों के सौंदर्यीकरण हेतु आधुनिक तकनीक एवं मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। परिषद द्वारा 75 बेड वाले अस्पताल का सुव्यवस्थित संचालन किया जाता है, जिसमें डायलिसिस सेंटर एवं ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा उपलब्ध है। SWM प्लांट और STP के माध्यम से ठोस एवं तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा रहा है। परिषद के अनेक सकारात्मक प्रयासों से हवा की गुणवत्ता में सुधार, हरियाली में वृद्धि एवं सफाई मित्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। स्वच्छ छावनी, स्वस्थ छावनी की दिशा में देवलाली निरंतर प्रगतिशील है और रहेगा। जय हिंद। To receive the award, I would like to invite the Chief Executive Officer, Shri Abhishek Mani Tripathi, the nominated member, Shri Sachin Suresh Thakre, Shri Aman Gupta, the Health Superintendent, and Shri Vilas Patil, the Assistant Engineer. I would request all of you to please be generous with your applause throughout this ceremony. इसी पुरस्कार श्रेणी में कैटेगरी बी के विजेता रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड बैरकपुर। अब हम उनकी उपलब्धियों पर आधारित एक ऑडियो विजुअल क्लिप देखेंगे। 250 वर्ष पुरानी छावनी बैरकपुर। सीमित संसाधनों में भी हमने बाधाओं को अवसर में बदला। 10,000 मीट्रिक टन विषाक्त कचरे से 7.5 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त की। उपेक्षित जल निकायों को फिर से जीवंत बनाया। डंप यार्ड को विरासत उद्यान में तब्दील किया। अव्यवस्थित सड़कों को 12,000 वर्ग फुट के स्वच्छ वेंडिंग जोन में बदला। 80 लाख की CSR साझेदारी से आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण और अस्पताल का कायाकल्प की। सफाई मित्रों से लेकर हर नागरिक तक बेहतर सुविधाएं, हर क्षेत्र में आधुनिकता। यही है सशक्त और सुव्यवस्थित बैरकपुर छावनी। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सुश्री ज्योति कपूर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड बैरकपुर, जिनके साथ उनकी टीम के सदस्य श्री प्रबीर पाल, सैनिटरी इंस्पेक्टर एवं श्रीमती अंतरा सेन, कंप्यूटर प्रोग्रामर आए हैं। The award in category C goes to Cantonment Board, Varanasi. Can we please have the short film showcasing their achievements? महादेव की नगरी काशी की छावनी आज स्वच्छता की नई पहचान है। वेस्ट नो मोर के तहत 100% डोर टू डोर कलेक्शन, 90% स्रोत पृथक्करण व नाइट स्वीपिंग। पुराने कूड़ेदान हटाकर जगहों को कंपोस्टर और वेस्ट टू आर्ट में बदला गया। सैनिटेशन पार्क में गीले सूखे कचरे की पूरी प्रोसेसिंग होती है। पुराना डंप साइट अब ग्रीन जोन है, जहां 1971 का T50 टैंक नई पहचान है। ई-वेस्ट ड्राइव, कपड़ा संग्रहण, RRR सेंटर, थैला घर, प्लोगोथॉन और ड्राई लीफ कंपोस्टिंग ने जन सहभागिता को मजबूत किया। स्वच्छ, सुरक्षित और सुदृढ़ छावनी हमारी पहचान है और प्रतिबद्धता भी। जय हिंद। To receive the award, I call upon stage Shri Satya Mohan, the Chief Executive Officer, Shri Ajay Singh Kushwaha, Shri Nilesh Kumar Chaudhary, and Shri Faizan, Safai Mitra. Many, many congratulations to Cantonment Board, Varanasi. अब हम पुरस्कार की अगली श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, जो दिव्यांग बच्चों के लिए श्रेष्ठ केंद्रों के प्रबंधन के लिए दिया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार कैंटोनमेंट बोर्ड बेलगामी को प्रदान किया जाता है। आइए उनकी उपलब्धियों की झलक एक लघु फिल्म के माध्यम से देखते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड स्नेहालय केंद्र का उद्घाटन अक्टूबर 2014 में हुआ।
ये केंद्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्पित है, जहां 40 बच्चे अध्ययनरत हैं। केंद्र का उद्देश्य बच्चों को उनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना है। यहाँ योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ बच्चों की शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक जरूरतों के अनुसार मार्गदर्शन करते हैं। बच्चों को कला, शिल्प और हस्तशिल्प बनाने की शिक्षा दी जाती है, जिससे उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल और अभ्यास भी कराए जाते हैं। बच्चों को विभिन्न आयोजनों और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलता है, जो उनकी सामाजिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाता है। स्नेहालय को अपनी उत्कृष्टता के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जो बच्चों के आत्मविश्वास को और बढ़ाते हैं। ये केंद्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर और बेहतर भविष्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं कैंटोनमेंट बोर्ड बेलगांव की पूरी टीम से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। टीम का नेतृत्व कर रहे हैं श्री राजीव कुमार, फॉर्मर सीईओ बेलगांव कैंटोनमेंट बोर्ड, जिनके साथ आए हैं डॉक्टर आर.बी. अनागोल, आरएमओ स्नेहालय सेंटर, व श्रीमती दीपाली नरेश पाटिल, प्रिंसिपल ऑफ स्नेहालय सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। Thank you. The next award is in the stream of digital accomplishments, and this award jointly goes to Defence Estates Office, Jabalpur and Pathankot Circle. Can we please have the short video showcasing achievements of DO Jabalpur Circle? रक्षा संपदा कार्यालय जबलपुर मंडल ने रक्षा भूमि अभिलेखों के सुरक्षित, आधुनिक और पारदर्शी प्रबंधन हेतु उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। कार्यालय में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए रोबस्ट मल्टी प्रोटोकॉल लीज्ड लाइन सिस्टम स्थापित किया गया है तथा सभी कंप्यूटर्स को पूर्णतः अद्यतन किया गया है। लीज और अतिक्रमण संबंधित समस्त अभिलेखों का रक्षा भूमि पोर्टल और RTR-AM पोर्टल पर पूर्ण अपडेटेशन सुनिश्चित किया गया है। साथ ही न्यायालयीन प्रकरणों का 100% नियमित प्रविष्टिकरण लिम्स पोर्टल पर किया जा रहा है। रिकॉर्ड रूम की 11,000 से अधिक पुरानी फाइलों का भौतिक सत्यापन, डिजिटल संरक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस वर्ष 27,000 एकड़ से अधिक रक्षा भूमि का CORS इनेबल्ड DGPS तकनीक से सर्वेक्षण किया जाना कार्यालय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। To receive the award, I call on stage Shrimati Neha Gupta, the Defence Estates Officer, Jabalpur Circle, Shri Gaurav Rathore, SDO, Shri Vinay Sharma, SDO, Shri Ajay Chandrakant Ranade, Senior Administrative Assistant. Many, many congratulations to the entire team of Defence Estates Office, Jabalpur. Can we please now have the short film for the achievements of Defence Estates Office, Pathankot Circle? डिजिटल इंडिया के तहत रक्षा संपदा कार्यालय पठानकोट ने अपने सभी मुख्य कार्यों को डिजिटाइज किया है। फाइल प्रबंधन, FMS के उपयोग से रिकॉर्ड का पूर्ण रूप से डिजिटाइजेशन हो गया है। कार्यालय द्वारा RTI, CP ग्राम्स पर शिकायतों का ऑनलाइन समाधान किया जाता है। अन्य ऑनलाइन पोर्टल जैसे लिम्स, NOC, E-ऑक्शन एवं गति शक्ति का प्रयोग कार्यालय द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यालय द्वारा 95% खरीद जिम पोर्टल के माध्यम से की गई है। To receive the award, I call upon stage Shri Kaushal Gautam, the Defence Estates Officer, Pathankot Circle, Shri Gulshan Kumar, the Assistant Administrative Officer, and Shri Devendra Kumar, SDO. Many, many congratulations to the entire team of DEO, Pathankot Circle. अगला पुरस्कार सार्वजनिक सेवाओं में नवीन प्रक्रिया के लिए दिया जाएगा। यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष इस श्रेणी में विजेता रहे हैं दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। अब स्क्रीन पर प्रस्तुत है उनकी उपलब्धियों पर आधारित एक संक्षिप्त फिल्म। दिल्ली छावनी परिषद ने आधुनिक तकनीक और नवाचार को अपनाकर नागरिक सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। स्वच्छता और नागरिक सेवाओं की निगरानी को नई गति देने के लिए स्वच्छता मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग टूल लागू किया गया है। इसी दिशा में हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ने छावनी अस्पताल को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस स्वास्थ्य सुविधा में बदल दिया है। दिल्ली छावनी ने अनुबंध प्रबंधन में सुधार के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया है। नागरिक सुविधाओं और सुरक्षित मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए काबुल लाइन पार्क में
EPDM रबर फ्लोरिंग स्थापित की गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए दिल्ली छावनी ने ट्री एम्बुलेंस की भी शुरुआत की है। इन सभी पहलों के माध्यम से दिल्ली छावनी परिषद ने यह सिद्ध किया है कि तकनीक, नवाचार और सतत विकास सिर्फ विचार नहीं बल्कि नागरिक हित में दिखाई देने वाले वास्तविक परिवर्तन हैं। जय हिंद। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी श्री रॉबिन बलेजा, CEO, श्री कपिल गोयल, फॉर्मर CEO दिल्ली कैन बोर्ड, व नॉमिनेटेड मेंबर श्री राजेश गोयल एवं सिस्टम एनालिस्ट श्री ज्ञानेंद्र पाल को। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे तालियों की गूंज से सभी पुरस्कृत टीमों का उत्साह बढ़ाएं। The next award is in the category of land and record management. We have two subcategories in it, category A and category B. In category A, the award goes to Defence Estates Office, Prayagraj. Can we please have the short video showcasing their achievements? रक्षा संपदा प्रयागराज के क्षेत्र में 32 जिले वे प्रयागराज, अयोध्या एवं वाराणसी छावनी है। फाफामो व अंधऊ हवाई पट्टी 117.9212 एकड़ अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ 2609 PPE एक्ट नोटिस जारी किए गए एवं 5 बंगलों का रिजम्पशन किया गया। महाकुंभ 2025 में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 13 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे सड़क, मंदिर, पुल एवं एयरपोर्ट को बनवाने की अनुमति दी गई। जय हिंद। To call on stage, I invite Shri Amit Kumar Mishra, the Defence Estates Officer, Shri Krishan Kant, the Additional Defence Estates Officer, and Shri Sitaram Meena, SDO. Many, many congratulations to the entire team. इस पुरस्कार श्रेणी में कैटेगरी बी का अवार्ड DEO सर्कल ईटानगर को दिया जाता है। कृपया उनके उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित वीडियो को दर्शाया जाए। अरुणाचल का रक्षा संपदा कार्यालय भूमि अधिग्रहण और प्रबंधन में सुधार लागू करने में सक्रिय रूप से संलग्न है, जिसमें सामरिक दृष्टिकोण को आधुनिक नवाचारों के साथ एकीकृत किया गया है। कार्यालय ग्राम स्तरीय प्राधिकरणों तथा जिला प्रशासन के साथ निकट समन्वय में कार्य करता है। कार्यालय रक्षा हितों की सुरक्षा तथा अधिग्रहित भूमि से संबंधित विवादों के समाधान हेतु कानूनी प्रक्रियाओं और प्रतिनिधित्व का कार्य भी करता है। जय हिंद। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं श्री गोकुल महाजन, डिफेंस एस्टेट्स ऑफिसर ईटानगर सर्कल, श्री आकाश कोहली, पूर्व DEO ईटानगर सर्कल, व श्री बिस्वा विकास सैकिया, ADEO, और श्री असीम कुमार साहा, SDO 1 को सादर आमंत्रित करती हूँ। The next award is in the stream of improvement in Cantonment General Hospital. Again, we have two categories in it, and in category A, the winner is Cantonment Board, Khadki. Can we please have the short video showcasing their achievements? खड़की कैंटनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल, जहां ICU, डायलिसिस सेंटर, एडवांस लेबोरेटरी और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं वर्षों से समुदाय को भरोसे और उत्कृष्ट देखभाल का आधार देती आई है, और अब इस सफर में जुड़ रहा है एक ऐतिहासिक कदम। इस वर्ष शुरू हुआ अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्डियक सेंटर, जहां अत्याधुनिक मशीनरी, प्रशिक्षित कार्डियक टीम और आपातकालीन प्रतिक्रिया हर पल जीवन बचाने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, इन सुविधाओं का लाभ खड़की और पुणे के निवासी जन आरोग्य योजना और शहरी गरीब योजना के तहत मुफ्त प्राप्त कर सकेंगे। खड़की कैंटनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल, स्वास्थ्य की नई दिशा, जीवन की नई शुरुआत। To receive the award, I call on stage Brigadier Paramjeet Singh Jyoti, VSM, President Cantonment Board Khadki, the Chief Executive Officer Shrimati Meenakshi Lohia, the Joint Chief Executive Officer Shri Suman Saurabh, nominated member Shri Abhay K. Sawant, and Dr. Ranjit Bhosle, the Resident Medical Officer. श्रेणी बी में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है कैंटोनमेंट बोर्ड लैंसडाउन को।
कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल की सेवाओं में कैसे इस कार्यालय ने सुधार किया है, आइए एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। छावनी परिषद जनरल अस्पताल लैंसडाउन। हमारे अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा सुविधाएं: जनरल डिटेंशन वार्ड, आयुर्वेद विभाग, दंत चिकित्सा केंद्र। इस साल हमने 200 से अधिक रोगियों को निशुल्क चश्मे वितरित करे हैं। फिजियोथेरेपी केंद्र, आधुनिक पैथोलॉजी लैब। हमारे अस्पताल में शामिल की गई कुछ आधुनिक संचालन प्रणालियां, हमारे द्वारा किए गए कुछ विशेष पहल कदम, भविष्य में किए जाने वाली कार्यसूची। हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आपके सेवा में सदैव तत्पर। छावनी परिषद लैंसडाउन। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करती हूँ कि श्री मोहम्मद शाकिब आलम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मिस बिनीता जखमोला, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, और डॉक्टर मनीषा अग्रवाल, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, मंच पर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। Ladies and gentlemen, a round of applause doesn't cost a penny, so please be generous with it. The next award is in the stream of implementation of eChavni project, and the award goes to Cantonment Board, Nasirabad. Can we please have the short video? नसीराबाद छावनी रक्षा मंत्रालय के ई छावनी पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को तेज, सरल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध करा रही है। ये पोर्टल छावनी क्षेत्रों को डिजिटल रूप से जोड़कर सुविधाओं को और सुगम बनाता है। ई छावनी पोर्टल के द्वारा विभिन्न श्रेणियों से प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाती है तथा उनका त्वरित समाधान व इनसे संबंधित डिजिटल पेमेंट ई छावनी पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, जिससे सभी वर्गों के नागरिकों को घर बैठे समय पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध हो सकें। नागरिकों की सुविधा के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर भी स्थापित है, जहां मार्गदर्शन और आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर मिलती है। ई छावनी पोर्टल के माध्यम से नसीराबाद छावनी डिजिटल सुशासन और जन सुविधा को नई दिशा दे रही है। To receive the award, I call on stage Brigadier Harish Kumar, the President, Cantonment Board, Nasirabad, the Chief Executive Officer, Dr. Nitish Gupta, the Office Superintendent, Shri Praveen Yadav, Junior Engineer, Shri Vishwendra Singh. Many, many congratulations to the entire team. रक्षा मंत्री पुरस्कारों में अगली श्रेणी छावनी परिषद के प्राथमिक अथवा मिडिल लेवल विद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए है। इस वर्ष यह पुरस्कार कैंटोनमेंट बोर्ड अहिल्यानगर द्वारा प्राप्त किया गया है। कृपया इस कार्यालय द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित वीडियो को दर्शाया जाए। अहिल्यानगर कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल आधुनिक शिक्षा और नवाचार के माध्यम से 763 विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम, खगोल शास्त्र, विज्ञान, कंप्यूटर लैब और मैजिक बॉक्स जैसी सुविधाएं बच्चों की जिज्ञासा को नई उड़ान दे रही हैं। खेल और मार्शल आर्ट विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और अनुशासन विकसित कर रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर, नशा मुक्ति अभियान और अडॉप्ट अ ट्री जैसी पहले जागरूकता बढ़ा रही हैं। पीएम श्री स्कूल की मान्यता, छात्रवृत्तियां, परीक्षाओं और सभी क्षेत्रों में छात्रों की सफलता शिक्षकों के समर्पण का परिचायक है। हमारा लक्ष्य है शिक्षित, स्वस्थ और विकसित भारत का निर्माण। पुरस्कार प्राप्त करने हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सुश्री पल्लवी विजयवंशी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, श्री वसंत राठौड़, नॉमिनेटेड मेंबर, श्री विक्रांत मोरे, फॉर्मर सीईओ अहिल्यानगर कैंट बोर्ड, श्री संजय शिंदे, हेडमास्टर पीएम श्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल एवं श्री राजू एन भोसले, हेडमास्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल का। The next award is in the stream for improvement in the functioning of Cantonment Board schools at secondary and senior secondary level. And the award goes to Cantonment Board, Lucknow. Can we please have the short film showcasing their achievements? माननीय रक्षा मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में स्थित लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल्स आज शिक्षा की एक नई पहचान बना रहे हैं। यहाँ शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं, एक अनुभव है, एक परिवर्तन है, जहाँ हर बच्चा अपनी छिपी क्षमताओं को पहचानता है। स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर और साइंस लैब, स्मार्ट लाइब्रेरी, सीसीटीवी सुरक्षा
और खेल सुविधाएं ये साबित करती हैं कि सरकारी विद्यालय भी उत्कृष्टता की मिसाल बन सकते हैं। सीखना यहाँ कक्षा तक सीमित नहीं। रीजनल साइंस सिटी, गोमती बुक फेयर और ऐतिहासिक स्थलों की यात्राएं बच्चों की समझ को किताबों से आगे ले जाती हैं। ताइक्वांडो, खो खो, फुटबॉल और बास्केटबॉल में विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण, करियर काउंसलिंग, एनसीसी, मिशन शक्ति और से नो टू ड्रग्स जैसे अभियानों ने बच्चों को जिम्मेदार और आत्मविश्वासी नागरिक बनाया है। और आज कक्षा 10 के परिणाम 87% से 96% और 12वीं कक्षा के 88% से 98% तक पहुंचे हैं। लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल्स, जहां शिक्षा सिर्फ एक अध्याय नहीं, एक उज्जवल भविष्य की कहानी है। To receive the award, I invite the Chief Executive Officer, Shri Abhishek Rathore, the nominated member of the board, Shri Pramod Sharma, the headmistress, Shrimati Poonam Thakur, and headmistress, Shrimati Sadhna Singh. Many, many congratulations to the entire team of Cantonment Board, Lucknow. थैंक यू सर। इसी के साथ रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार का वितरण आज संपन्न हुआ है। सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देवियों और सज्जनों, अब हम कार्यक्रम के उस महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुके हैं जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देश की रक्षा नीति को दिशा देने वाले सशस्त्र बलों के मार्गदर्शक आदरणीय रक्षा मंत्री जी का संबोधन। माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का जीवन समाज और राष्ट्र की सेवा के सर्वोच्च दायित्वों को निभाने में निष्ठा, सादगी और राष्ट्र सेवा का प्रेरणादायी उदाहरण है। उनका नेतृत्व हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव में ही निहित होती है। बिना किसी और देर के मैं सभी उपस्थित अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे जोरदार तालियों से माननीय रक्षा मंत्री जी का मंच पर स्वागत करें। Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Defence Secretary Sri Rajesh Kumar Singh ji, Secretary DDR&D and Chairman DIDO Dr. Samir V. Kamath, Sri Rajkumar Arora, FADS, श्रीमती शोभा गुप्ता DGD और यहाँ मौजूद सारे अधिकारी वर्ग, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं रक्षा संपदा दिवस के अवसर पर अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, यह हम सब के लिए एक गौरव का विषय है कि हमारे वीर सैनिकों ने अपने पराक्रम और शौर्य से जिस मातृभूमि की रक्षा की है, उस मातृभूमि की देखरेख और उसके संभालने का जिम्मा हम सबके पास है। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक संस्था के रूप में आप सब ने ग्राउंड ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन की भूमिका निभाई है। आपने खुद को केवल फाइल्स, ऑर्डर्स और रूल बुक्स तक सीमित न रखकर देश के विकास से जोड़ा है। यह अपने आप में आप सबके लिए भी एक गौरव का विषय है। जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, स्वाभाविक रूप से मेरे मन में भी यही भाव आता है कि आप किसी संस्था के अफसर से या किसी सर्विस के एम्प्लॉइज भर नहीं हैं, बल्कि आप वो लोग हैं जो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने रोजमर्रा के कामों में जीते हैं। आपका हर डिसीजन, आपका हर सिग्नेचर कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा से ये जुड़ा होता है। इसलिए आज जब मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं देश के लिए इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस यानी IDS के योगदान की सराहना करता हूँ। लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय से IDS ने जिस परंपरा और जिस विरासत का निर्माण किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, मैं समझता हूँ वह कम है। आज हमारी डिफेंस स्टेट्स का दायरा कितना व्यापक और कितना महत्वपूर्ण है,
इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि आप लोग 17 लाख एकड़ से भी अधिक डिफेंस लैंड का मैनेजमेंट करते हैं। यह कोई, मैं मानता हूं, साधारण जिम्मेदारी नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी जो डिफेंस लैंड है वह महज जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की एक बुनियाद है। और साथियों, यह संगठन अपने आप में एक लीगेसी इंस्टीट्यूशन है, एक परंपरा है, एक संस्कार है, एक ऐसा सतत प्रवाह है जो कई पीढ़ियों से राष्ट्र की सेवा करता आ रहा है। आपका संगठन जितना पुराना है, उतनी ही गहरी इसकी जड़ें हैं और उतनी ही व्यापक इसकी छाया है, जो समय समय पर देश की जरूरतों के अनुसार यह फैलती रहती है। यही किसी मजबूत और सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन की पहचान हुआ करती है। और साथियों, इस संगठन को देखकर मुझे मां गंगा का उदाहरण याद आता है। आप देखिए कि हर जगह गंगा जी के अलग अलग स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे। हरिद्वार में गंगा जी कुछ और दिखती हैं, प्रयागराज में उनका स्वरूप बदल जाता है, कानपुर में उनका रंग और वेग ये अलग होता है। उनके किनारे बदलते हैं, स्थितियां भी बदलती रहती हैं, लेकिन कभी भी गंगा जी की पहचान नहीं बदली, उसका कोर कैरेक्टर नहीं बदला। ठीक उसी तरह यह संगठन भी समय के साथ इवॉल्व करता रहा। परिस्थितियां बदली, रोल्स बदले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदली, नए चैलेंजेज आए, लेकिन इसका मूल स्वभाव वही रहा, डिसिप्लिन, सर्विस and unwavering commitment to the nation। और साथियों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है बिना अपनी ओरिजिनलिटी को खोए हुए किसी चेंज को एक्सेप्ट करना। लेकिन आपने यह करके दिखाया है, और इसकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद आपने मॉडर्न थिंकिंग को भी सहज तरीके से अपनाया है। टेक्नोलॉजी को आपने अपनाया है, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया है, और चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस के अनुसार खुद को आपने अपने को अलाइन करने की कोशिश भी की है। साथियों, ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन के बीच बैलेंस बनाना यह कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन आपने यह बैलेंस बनाया है, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज अगर हमारा डिफेंस सेक्टर इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है, तो उसमें आपके इस डेडिकेशन का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। और साथियों, किसी भी राष्ट्र की ताकत केवल हथियारों से नहीं मापी जाती है। उसकी असली ताकत उसके सिस्टम, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके वैल्यूज में होती है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर ईमानदार, ट्रांसपेरेंट और सेंसिटिव हो, तो वह उस राष्ट्र की सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। रक्षा संपदा संगठन इसी एडमिनिस्ट्रेटिव इथोस का, मैं मानता हूं, अपने में एक उदाहरण है। आज जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, नए भारत की हम बात करते हैं, और 2047 तक विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे शब्द अपने आप जुड़ जाते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आपके कार्यों में यह पूरी तरह से साफ तौर पर दिखाई देता है। चाहे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स हों, अथवा सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग हो, या इंक्रोचमेंट रिमूवल की कार्रवाई हो, हर जगह एक स्पष्ट इंटेंट नजर आता है। और साथियों, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के क्षेत्र में भी आपके प्रयास, मैं मानता हूं कि यह रिमार्केबल हैं, उल्लेखनीय हैं। छावनियों को ग्रीन और क्लीन बनाना, वाटर कंजर्वेशन पर काम करना, वेस्ट मैनेजमेंट में साइंटिफिक अप्रोच अपनाना, यह दिखाता है कि सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ दोनों चल सकते हैं, और यह आने वाले समय के लिए एक मॉडल बन सकता है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आपके प्रयास सराहनीय हैं। आज हमारी छावनियों में रहने वाले स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं, और ये जरूरी भी है, क्योंकि आज
जब सारी दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा मैनेजमेंट की बात हो रही है, तभी आवश्यक है कि हमारे बच्चों को ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए। रक्षा संपदा संगठन का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसी संतुलन का एक उदाहरण है। और हालांकि मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आने वाले वर्षों में हमें कैंटोनमेंट्स को और भी अधिक स्मार्ट, ग्रीन और सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। और इस संबंध में मैं आश्वस्त हूँ कि यदि आपका ऐसा ही एफर्ट आपके बने रहे, ऐसा ही प्रयास चलता रहा, इस लक्ष्य को भी हम हासिल करने में कामयाब होंगे। हमें ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करना है जो और ज़्यादा सरल हो, सरल होने के साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव हो और भविष्य के प्रति भी वह सजग हो। इसलिए आज का यह अवसर सेलिब्रेशन के साथ साथ रीअफर्मेशन का भी एक अवसर है। इस बात को दोहराने का भी अवसर है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखेंगे। साथियों, चूंकि आप सबकी ड्यूटीज का बड़ा हिस्सा भूमि से जुड़ा हुआ है, लैंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। आमतौर पर जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में बड़े बड़े शब्द आते हैं, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, पावर, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब की जड़ में वह भूमि है, वह जमीन है जिस पर हम खड़े हैं, जिस भूमि पर हमारे संस्थान खड़े हैं, जहाँ से सैनिक अपनी ड्यूटी पर निकलता है, जहाँ नागरिक अपना जीवन बनाता है। यह भूमि ही तो राष्ट्र की पहली पहचान होती है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि मानव सभ्यता की शुरुआत भी भूमि से ही हुई। जब मनुष्य ने कृषि शुरू की तभी समाज बना, संस्कृति बनी और व्यवस्था बनी। रोटी भूमि से आई, कपड़ा भी भूमि से मिला, मकान भूमि पर ही खड़ा हुआ, हमारी पहचान भी भूमि से जुड़ी। तब न कोई कानून था, न कोई फाइल थी, लेकिन फिर भी भूमि का सम्मान बना हुआ था। इस देश में तो हम लोग वैसे भी भूमि को कोई भौतिक वस्तु नहीं मानते हैं, बल्कि वह एक इतिहास होती है, स्मृति होती है, और भूमि को हम माता तुल्य मानते हैं। यह हमारे भारत की परंपरा है। और मैं मानता हूं कि यह सब सारी चीज़ें हमारी भविष्य की नींव होती हैं। इसलिए आज हम भले ही मॉडर्न गवर्नेंस की बात करते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, लेकिन हमारी मूल भावना वही रहनी चाहिए, भूमि के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी। आप लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, लिटरली भी और मॉरली भी। आप जितना जनता से जुड़े हुए हैं उतना तो शायद ही डिफेंस की कोई और सर्विस जुड़ी हुई हो। जनता आपके ऊपर भरोसा करती है, इसलिए आपका काम केवल भूमि का प्रबंधन करना ही नहीं है, बल्कि जनता के उस भरोसे को संभालना भी है। यह आप ही की जिम्मेदारी है। भविष्य की चुनौतियां हमारे सामने मुंह खोले खड़ी हैं, हमें उन चुनौतियों से भी निपटना होगा। ऐसे में एक बुनियादी प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या हम केवल प्रक्रियाओं को चलाने वाले संगठन बने रहेंगे, या एक ऐसे संस्थान बनेंगे जो सीखता भी है, बदलता भी है और रास्ता भी दिखाता है। यहाँ पर डीजीडी भी उपस्थित हैं। मेरा मानना है कि डीजीडी के सामने आज इस सेलिब्रेशन के दिन एक बड़ा अवसर यही है कि वह इस संगठन के अंदर इनोवेशन और कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की एक अस्थायी संस्कृति डेवलप करें। हमारी यह अपेक्षा है। और इसके लिए हमें किन्हीं असाधारण विचारों की नहीं, इसके लिए हमें किसी असाधारण विचारों की नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित सोच की जरूरत है। एक व्यवहारिक सुझाव तो यह हो सकता है कि संगठन के भीतर हर वर्ष एनुअल चैलेंज स्टेटमेंट्स की शुरुआत की जाए। संगठन के भीतर हर वर्ष एनुअल चैलेंज स्टेटमेंट्स की एक शुरुआत की जाए। ऐसे स्टेटमेंट्स जो हमारी वर्षों पुरानी समस्याओं से जुड़े हुए हों, और उन नई चुनौतियों से भी जो धीरे धीरे हम सब के सामने आ रही हैं, जैसे रेंट रिकवरी के पुराने मामले और लीजिंग कंप्लायंस से जुड़े विवाद, और इसके साथ ही रोजाना नई नई आ रही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चुनौतियां। अगर हम इन मुद्दों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करें, आइडेंटिफाई करें, और फिर अपने ही अनुभवी अधिकारियों, युवा सोच वाले अधिकारियों
और विशेषज्ञों को आमंत्रित करें तो वे नए समाधान सुझाएं, तो यकीन मानिए कि हम केवल छोटे सुधारों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज की दिशा में हम आगे बढ़कर रहेंगे। और इससे संगठन एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन के रूप में भी डेवलप होगा, जो एजाइल भी होगा और एजाइल होने के साथ साथ फ्यूचर रेडी भी होगा और सॉल्यूशन सेंटर्ड भी होगा। साथियों, एक दूसरा विषय जिस पर हमें ईमानदारी से बात करनी चाहिए वह है डिफेंस लैंड से जुड़ा लिटिगेशन। आज यह न केवल हमारा समय लेता है बल्कि रिसोर्सेज और एनर्जी भी खर्च करता है। हमें अपनी लिटिगेशन हैंडलिंग कैपेसिटी मजबूत करनी ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हम इसे और अधिक इंटेलिजेंट और प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं। डिफेंस लाइन के लिए क्या हम मैकेनिज्म बना सकते हैं जिसमें केसेस की टाइमिंग, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन, नेक्स्ट हियरिंग, लीगल काउंसिल की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल रिस्क, ये सब रियल टाइम में और एक जगह हमें ठीक तरीके से पता चल सके और इससे निर्णय लेना मैं समझता हूं कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। बेहतर लैंड रिकॉर्ड्स, मजबूत डॉक्यूमेंटेशंस, अर्ली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और सिविल अथॉरिटीज के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन, ये सब ऐसे कदम हैं जो हमें रिएक्टिव लिटिगेशन मैनेजमेंट से निकालकर प्रिवेंटिव लैंड गवर्नेंस की ओर ले जा सकते हैं और इन्हीं रिफॉर्म्स की तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथियों, आज जब हमारी कैंटोनमेंट्स लगातार मॉडर्नाइज हो रही हैं तो डीजीडी के पास यह अवसर भी है कि वह सिटीजन सेंट्रिक अर्बन गवर्नेंस में देश के लिए एक बेंचमार्क बने। मैं देश में बेंचमार्क बनने की बात नहीं कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आप सब इस काम को कर सकते हैं। अगर हम कैंटोनमेंट्स के लिए एक सिटीजन सेटिस्फैक्शन इंडेक्स डेवलप करें जो ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल सर्विस आउटकम्स पर आधारित हो, तो यह न केवल सुधार के क्षेत्रों को दिखाएगा बल्कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी स्वाभाविक रूप से यह बढ़ाएगा। तब हमारी कैंटोनमेंट्स बेहतर भी होंगे और पूरे देश के लिए यह अपने आप में एक उदाहरण भी बनेंगे। और साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह की आपकी ड्यूटीज़ हैं और आपके डे टू डे एक्शंस केवल फाइल्स या प्रोसीजर्स तक सीमित नहीं रहते बल्कि पब्लिक परसेप्शन और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को भी शेप करते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन उसके रूल्स, मैनुअल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनती है, बल्कि वहां काम करने वाले हर इंडिविजुअल के कंडक्ट से बनती है। एक एक एम्प्लॉई का बिहेवियर, उसकी वर्क एथिक और डिसीजन मेकिंग स्टाइल यह तय करता है कि लोग उस संस्था को किस नज़र से देखते हैं। और इसलिए हमें हर स्तर पर जहां भी जरूरत दिख रही है वहां रिफॉर्म लाने में संकोच नहीं करना चाहिए, हमें हिचकना नहीं चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो दिखने में तो मामूली लगते हैं, लेकिन वे स्टेप्स धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को थोड़ा डल कर देते हैं। किसी भी प्रकार की लैक ऑफ सेंसिटिविटी, शॉर्टकट्स और डेविएशन का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है जो संगठन की साख को स्वाभाविक रूप से यह नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में मैं आप सभी से यह भी अपील करना चाहूँगा कि हम अपने भीतर एक काइंड ऑफ इनर कंपास भी डेवलप करने की कोशिश करें और मैं समझता हूँ इसे डेवलप करना ही होगा। और यह भाव डेवलप करना होगा कि जो भी हम कर रहे हैं वह सिर्फ हमारा पर्सनल एक्ट नहीं है, बल्कि यह इंस्टीट्यूशन का एक रिफ्लेक्शन है। ट्रांसपेरेंसी, रूल बेस्ड गवर्नेंस और इंटीग्रिटी जैसे वैल्यूज कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, बल्कि ये तो हमारे गुड गवर्नेंस की कोर वैल्यूज हैं। जब हम ओपनली, ऑब्जेक्टिवली और बिना किसी बायस के काम करते हैं तो न केवल पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है बल्कि हमारी अपनी प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। इसलिए आप हर फाइल साइन करते समय, हर डिसीजन लेते समय यह सोचें
कि क्या ये स्टेप हमारे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को मजबूत करेगा या नहीं करेगा। अगर यह सवाल हमारे माइंड में क्लियर है तो डायरेक्शन अपने आप सही हो जाएगी। और यही अप्रोच हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे डिफेंस इकोसिस्टम को और अल्टीमेटली हमारे राष्ट्र को और मजबूत बनाएगी। यही हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी सिंसियरिटी और कमिटमेंट के साथ निभाएंगे। और अब तक जो कुछ भी आपने काम किया है उसकी मैं व्यक्तिगत रूप से अपने स्तर से भी उसकी मैं सराहना करता हूं। आप अपनी ड्यूटीज को केवल एक जॉब के रूप में न देखें, इसे नेशन बिल्डिंग का एक प्रभावी माध्यम माने। अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एनर्जी और अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। हर दिन स्वयं को और बेहतर बनाने का प्रयास करें, नए स्किल्स भी सीखें और इस बात को हमेशा याद रखें कि आपका प्रत्येक प्रयास भारत को और अधिक सशक्त बना रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सभी ने इस सोच को अपनाया और इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े तो आने वाले समय में आप सब न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक रोल मॉडल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपनी पहचान और मजबूत कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं मानता हूं कि आपको डीजीडी के रूप में बहुत ही एक डायनेमिक और बहुत ही कैपेबल अधिकारी मिली है, शोभा जी। देश की रक्षा मंत्री के रूप में मैं आप सभी के एक गार्जियन भी मानिए, रक्षा मंत्री ही नहीं हूँ, गार्जियन भी हूँ, आप सबसे उम्र में बड़ा भी हूँ। और आप सभी के गार्जियन होने के नाते भी मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है। और पुनः एक बार रक्षा संपदा दिवस की भी आप सबको बधाई देता हूँ और विजय दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद महोदय। माननीय रक्षा मंत्री जी को उनके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें समय समय पर रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहता है। और अब मैं महानिदेशक महोदया रक्षा संपदा श्रीमती शोभा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वो माननीय रक्षा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं महानिदेशक महोदया से अनुरोध करती हूँ कि वे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। We also feel encouraged by the graceful presence of Defence Secretary Shri Rajesh Kumar Singh. I request the Director General Defence Estates to present a memento to Shri R.K. Singh. मैं डीजी मैडम से आग्रह करती हूँ कि वे सेक्रेटरी डीआरडीओ डॉक्टर समीर वी कामत को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। I also request the Director General to kindly present a memento to our special guest, the Financial Advisor, Defence Services, Shri Raj Kumar Arora. Thank you, sir. समय की गति इतनी तीव्र होती है Just a minute.
the Honorable Chief Guest, Rajnath Singh Ji, has dedicated the memento which was presented to him to the students of Cantonment Board Schools who had put up a brilliant effort in putting up the exhibition. Thank you so much, sir. समय की गति इतनी तीव्र होती है कि पल भर में ही लम्हे बीत जाते हैं और देखते ही देखते आज का यह कार्यक्रम अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। इसी के साथ मैं श्रीमती मीना शर्मा, सीनियर एडिशनल डीजी, को मंच पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करती हूं। नमस्कार। माननीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ महोदय, माननीय रक्षा सचिव, सचिव DNRD, चेयरमैन DRDO, माननीय रक्षा सचिव के वित्तीय सलाहकार, महानिदेशक रक्षा संपदा और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण एवं साथियों, मैं रक्षा संपदा महानिदेशालय की ओर से आज के कार्यक्रम में आप सबकी गरिमा में उपस्थिति के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि वो अपनी महत्वपूर्ण व्यस्तताओं से समय निकालकर आज हम सबके मध्य पधारे एवं अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ किए। आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन हम सबके लिए सदैव ही प्रेरणा एवं ऊर्जा के स्रोत रहे हैं। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का भी धन्यवाद। मैं रक्षा संपदा संगठन के सभी सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों तथा महानिदेशालय के अन्य उपस्थित अधिकारियों का और एवं स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से ये आयोजन सफल हुआ। विशेष धन्यवाद CO DCB और उनके साथी अधिकारियों और कर्मचारियों का करना चाहूँगी, जिनके अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सका। साथ ही धन्यवाद करती हूँ मीडिया के सभी साथियों का, जिनकी उपस्थिति से आज का कार्यक्रम देश भर में प्रसारित हो सका। धन्यवाद। Thank you, ma'am. So, ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I once again thank you all for being the part of this